Now we'll continue with AP and sum of n terms of AP. Okay. So the question says let A1, A2, A3 up till A100 is in arithmetic progression. Okay. Where my first term is 3 and sum of p terms is nothing but summation I is equal to 1 up till p, which is ai, where p is 1 less than equal to p less than equal to 100. For any integer n, for any integer n with 1 less than equal to n less than equal to 20, let m is equal to 5 times n. Okay. If sum of n terms upon sum of n terms is independent of n, if independent of n, then what is the value of a2? Let's try to understand the question. Too much information is given and how to execute. सबसे पहले whatever we understand we have to catch that first. मुझे फर्स्ट टर्म समझ गए, फर्स्ट टर्म दिया है 3, मुझे फाइंड आउट करना है सेकेंड. ऑब्वियस डेटा, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस. दे आर सेइंग कि सम ऑफ पी टर्म्स इज समेशन आई इज इक्वल टू अप टिल पी. अभी पी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. अभी किसी ने बोला कि पी का वैल्यू 10 है, so this will become a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 plus a6 plus a7 plus a8 plus a9 plus a10 is sp. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट नो इससे क्या हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं. तो ये कैसे दिखेगा मुझे पता है कि अगर मैंने p का वैल्यू 3 ले लिया तो दिस विल बिकम p इज द इफ आई टेक s3 तो दिस विल बी ऑब्वियस 3 लाइज बिटवीन 1 and 100. तो आई कैन राइट s3 इज इक्वल टू a1 plus a2 plus a3 obviously. So we know that sum of any terms is nothing but their first term plus second term plus third term plus fourth term. Sum of 10 terms पूछा तो first term plus second term up till 10 terms. ये सबको पता है. और n is from 1 to 20. Okay. अगर n from 1 to 20 we have no idea कि इस डेटा का भी क्या करना है. बट यहाँ पे आता है कि m is equal to 5 है. m का वैल्यू is 5 times of n and this is a familiar face कि sm upon sn is independent of n. Let's talk about this. Sum of n terms of sum of n terms is independent of n, मतलब उसमें n नहीं होना चाहिए. सुनो मेरी बात ध्यान से. इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब तुम कुछ भी करो उस वैल्यू में द फाइनल सिंप्लीफिकेशन, मैंने सिंप्लीफाई sm upon sn, उसमें n नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. then I will find d2. So I have now understood कि first term दिया है और sm upon sn when I simplify it, it should not contain n. Has everybody understood this? sm upon sn should not contain n. So how do I proceed with this? सबसे पहले if I say that sm का value will become m by 2 2a plus m minus 1d and Sn का वैल्यू विल बिकम n by 2 2a plus n minus 1d. ओके, ये हो गया मेरा Sm upon Sn. Now since I have Sm upon Sn and also they have said that m is 5 times n, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि also we know that m is 5 times n. अगर मैंने एक के साथ एक लिखा so this will become Sm upon Sn m by 2, m के जगह I know that it is 5n, तो I will write 5n by 2 2a plus
5n minus 1d the whole upon n by 2 2a plus n minus 1d. Okay, so now I know कि it should be independent of n. Okay, they have said that Sm upon Sn should be independent of n. If I solve this, सबसे पहले जो जो obvious है वो निकाल देंगे. मेरा n निकला, n निकला, 2 निकला, 2 निकला. Okay, this is what is no simplified. Problem क्या है? यहाँ पे बोला है it is independent of n. यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है. If this is independent of n, I'll just write it whatever is left. 5 into 2a plus 5n minus 1d. चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. So 2a plus 5nd minus d. और नीचे होगा 2a plus nd minus d. ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. ब्रैकेट ओपन करके कुछ वी डोंट नो कि हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस, बिकॉज मुझे पता है कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन. कैन एनीवन टेल मी हाउ विल दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन? और इफ आई कैन आस्क, एन का क्या वैल्यू डालेंगे, तो इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एन, कि एन अपने आप गायब हो जाएगा. कि मुझे n को गायब करना है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि Sm अपॉन Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब n एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इन इक्वेशन में. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एंड शुड आई सब्स्टिट्यूट समथिंग एल्स? बिकॉज देखो मेरे पास एक और वैल्यू है विच इज द वैल्यू दैट इज गिवन, जो हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया. देयर इज वन वैल्यू गिवन टू मी, विच इज द वैल्यू दैट वी हैव नॉट सब्स्टिट्यूटेड. a का वैल्यू, व्हाट इज a का वैल्यू? 3 दिया है. अब देखो यहाँ पे ये लिख दिया था मैंने. अब अगर मैंने समझो यहाँ पे a के जगह 3 डाल दिया, so what will this become? This will become 6 and this will become 6. Have you guys understood this? तो a का वैल्यू 3 है and 2a will become 6. So if I get 6 here, so can you tell me now what should I do so that n gets eliminated? This is very, you know, if you see ना, ऊपर और नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो दो चीज कॉमन है ब्रैकेट में. कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू थिंग्स व्हिच आर कॉमन? सबसे पहले 6 and d. सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड दिस, सब लोग का फोकस इतना n पे रहता है ना कि यू आर सपोज्ड, इफ यू वांट टू एलिमिनेट n, यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद द अदर टर्म्स. अब देखो इसका मतलब क्या होता है. मैं बोलूंगा 6 minus d is equal to 0, तो d का वैल्यू हो गया 6. गाइज अगर d का वैल्यू 6 हो गया, ध्यान से देखो, अगर d का वैल्यू 6 हो गया, सो दिस विल बिकम 6 minus 6 which is 0. ये हो जाएगा 6 minus 6, this is 0. What is left in the bracket? 5 and d. नीचे क्या बचेगा? Does nd and nd get cancelled? Yes, and अपने आप eliminate हो जाएगा. And now to eliminate that, if I take 6 minus d is equal to 0, n will get eliminated. और मुझे a2 पूछा है, मेरे पास a1 दिया है 3, एंड अगर मेरा a1 3 है, मेरा कॉमन डिफरेंस 6 है, कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी माय सेकंड टर्म? व्हाट इज a2? a2 is going to be a1 plus d, which is 3 plus 6, which is equal to 9. So remember this. यहाँ पे जब मुझे nd एलिमिनेट करना है, वो तभी एलिमिनेट होगा when I make peace with the fact that 6 minus d को, सबसे पहले 6 minus d को सॉल्व करो. बिकॉज इमेजिन करो ना, मैंने समझो 6 निकाल दिया और d निकाल दिया, बचा है 5 nd अपॉन nd, एंड अपने आप जब n कैंसिल होता है तो वी प्रूव दैट इट इज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ x. अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी बेसिक सम. वी हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग. हमने पूरा सम किया है सम ऑफ n टर्म्स. There is not a single shortcut, there is not a single formula. We have just, because see, this is given, जो हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे कभी यूज नहीं किया. अब n अगर बोल भी रहे n, so what they are trying to say is I can cancel n because n is not 0.
तो n जीरो नहीं है मतलब ऑब्वियसली n जीरो नहीं रह सकते, नंबर ऑफ टर्म्स कभी जीरो नहीं हो सकते. सो दिस इज डेटा, दिस इज टू जस्ट वेरीफाई. एंड SP अगर तुम लोग ध्यान से देखो कहीं पे भी हमने SP यूज नहीं किया. सो ओनली ऑन द डेटा दैट इज गिवन टू मी, दैट इज इंडिपेंडेंट, हमने 6 - d को इक्वल टू 0 कर दिया एंड अपने आप ND एलिमिनेट हो गया. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी नाइस सम. गोइंग ऑन. नाउ if an is equal to n square plus 1, bn is equal to a of n plus 1 minus an. Okay, a of n plus 1 minus an. They are saying that then bn is AP, GP, HP. कि an दिए and they are asking bn में it is AP, GP, HP. So you can solve by basic method also. तुम लोग अगर solve करना है तो n का वैल्यू 1 ले लो, n का वैल्यू 2 ले लो, n का वैल्यू 3 ले लो, सब्स्टिट्यूट करो. इफ माई डिफरेंस इज कमिंग कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है तो ये AP में रहेगा. अगर रेशियो कॉमन डिफरेंस है तो GP में रहेगा. सो लेट्स सॉल्व. अगर तुम लोग डायरेक्ट n का वैल्यू 1 2 3 डालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. विल गो बाय द बेसिक मेथड की an दिया है. सो इफ an is given as n square plus 1 and a of n plus 1 निकाल देते हैं, which will become n plus 1 the whole square plus 1, which is n square plus 2 plus 2n. And now if I find bn, bn is nothing but an plus 1, that is n square plus 2 plus 2n minus an, and an is n square plus 1. If I solve this, देखो n square कट हो रहा है. अगर n square कट हो रहा है, आई एम गेटिंग 2n plus 1. और गाइस ये आ गया मेरा लीनियर टर्म. Now, so if I solve this, so therefore if I solve this, I will get a linear term. And अगर ये linear term है, hence the sequence will become AP. हमेशा याद रखो, अगर sequence linear term है, जब हमने लास्ट लेक्चर में रिमार्क में लिखा था, hence the answer will be in AP. Did you guys understand this? So basically bn दिया है, मैंने यहाँ पे वैल्यू सबसे कर दिया. If it is a linear term, my answer will always be in AP. Has everybody understood this? Linear term याद रखो. अगर linear term है तो मेरा आंसर हमेशा AP में रहेगा. अगर वो quadratic रहेगा, SN रहेगा, SN will always be in quadratic term. SN will always be in quadratic term. Now, next. Say for example दिया है कि A, B, C, D are in AP. A, B, C, D are in AP. Then, ठीक है, then I have to prove that ABC, ABD, ACD and BCD are in question mark. वो AP में है, GP में है, HP में. सबसे पहले they have said that A, B, C, D are in AP. A, B, C, D are in AP. दिया है कि A, B, C, D are in AP. And if you remember in the first lecture we had written, if a sequence is in AP, if you add something, it will be in AP. If you subtract something, it will be in AP. If you divide something, it will be AP. If you multiply something, it will be in AP. तो मैं क्या करूँगा? If A, B, C, D are in AP, देखो दिया है कि A, B, C, D, this is in AP. मैं क्या करूँगा? I will divide by ABCD. I will divide throughout by ABCD. जैसे ही मैंने divide throughout by ABCD कर दिया, so A upon ABCD, B upon ABCD, C upon ABCD, D upon ABCD are also in AP. तो निकला A, निकला B, निकला C और ये निकला D. बचा क्या? I've got 1 upon
BCD, 1 upon ACD, 1 upon ABD, 1 upon ABC। गाइस ये भी AP में है, ठीक है। अब जैसे AP में आ गया, अभी फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, आई विल गिव एन एग्जांपल। समझो ऐसा दिया है 10, 20, 30, 40 आर इन AP, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इफ यू डिवाइड समथिंग इट विल बी इन AP। अभी अगर मैंने बोला 10, 20, 30, 40 आर इन AP, अगर मैंने उल्टा भी लिखा 40, 30, 20, 10, ऑब्वियसली दे विल बी आल्सो इन AP, क्योंकि आगे से देखो पीछे से देखो मेरा डिफरेंस अलग भी हो सकता है, बट ये AP में रहेगा। अगर ऐसे भी देखेंगे तो AP में है, अगर मैंने उल्टा भी देखा तो भी ये AP में रहेगा, ठीक है। मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ? नाउ they have said that 1 upon BCD, 1 upon this, 1 upon this, 1 upon this, ये AP में है। अब ये AP में है, अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, तो I'll get BCD, ACD, ABD and ABC। कोई बताएगा ये किस में रहेगा? It will be in HP। The reciprocal of arithmetic mean is the reciprocal of arithmetic progression is harmonic progression। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा they will be in HP। HP का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इफ़ यू हैव टू फाइंड HP का कोई सम है, यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू AP। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसका रेसिप्रोकल लेना है, विल बी डूइंग दो सम्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू HP। यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, सॉल्व इट, और जो भी आंसर आएगा यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। तो अगर मैंने AP का रेसिप्रोकल ले लिया तो HP रहेगा, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो AP रहेगा। तो रिमेंबर दिस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic progression। Has everybody understood this? Harmonic progression is nothing but the reciprocal of arithmetic progression। So this is how you proceed with these kind of sums। एक और क्वेश्चन देते हैं इसका, समझो ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि इफ ए स्क्वायर, अब थोड़ा अलग टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे आर इन AP, ठीक है। प्रूव दैट 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, 1 upon A plus B is also in AP। मैं बोल रहा हूँ सामने से, मैं बता भी रहा हूँ कि प्रूफ करना है कि ये AP में है। क्या दिया है मुझे? दे हैव गिवन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। इफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP, I have to prove that 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, 1 upon A plus B is also in AP। ओके, सो एक काम करते हैं ना, अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया, समझो आई स्टार्ट विद दिस, कि क्या बोला AP में प्रूफ करना है ना, इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं यहाँ पे। आई विल से दैट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दिया है कि ये AP में है। AP का मतलब तुमको पता है, मेरे को पता है कि B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, लुक एट दिस। सो इसका ना डिफरेंस निकालते हैं, 1 अपॉन C प्लस A माइनस 1 अपॉन B प्लस C। इफ आई सॉल्व दिस will become B plus C and this should be equal to 1 upon A plus B minus 1 upon C plus A। दिया है कि AP में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉरी, दिस इज गिवन दैट इट इज इन AP। अगर मैंने इसका LCM लिया तो B plus C माइनस C plus A अपॉन C plus A B plus C इज इक्वल टू C plus A। देखो ध्यान से देखो, and you will tell me if any change is required here। ठीक है, ध्यान से देंगे, ठीक है। मुझे ये मिला है, ओके। इफ आई सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, और ये हमने ऑब्वियसली जो डेटा दिया उस हिसाब से आई हैव गॉट दिस, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा ना, सबसे पहले मुझे लालच आया कि ये देखो ये कटोरा निकाल दो, जितना टर्म्स कम उतना अच्छा। न्यूमरेटर ध्यान से देखेंगे ना तो ये C और ये C कट हो रहा है। आई एम लेफ्ट विथ P माइनस A अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू, ये देखो A भी कट हो रहा है, C माइनस B अपॉन A प्लस B, C प्लस B। नाउ सो दिस विल बिकम B माइनस A B प्लस A इज इक्वल टू C माइनस B अपॉन C प्लस B, बराबर।
So I am left with b square minus a square is equal to c square minus b square. Oh, देखो ध्यान से, I've got exactly the same. देखो, तो now ये आ गया है and I've got something like this. What is important for me is same thing. अगर say for example ये है मेरे पास, imagine if I go backwards, I prove that it is an AP. यहाँ पे दिया है कि it is an AP, प्रूव करना था, हमने प्रूव किया AP. बट अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया, समझो ये है मेरे पास डेटा, I go with this, then I arrange it, and the only step is you have to multiply c plus a on both sides. ये exactly ये pattern बनता है, and then I prove that this is an AP. So anyhow you proceed, there are different ways of solving. You can also solve by the K method. You can solve by the K method, ratio and proportion जो करते थे कि b square minus a square is equal to k. K ले लेंगे, इसको solve करो, get the answer. So ratio and proportion जो हमने last year किया था, if you go by that method, you can solve by the K method, you can solve by this, and you can go exactly जो दिया है यहाँ पे prove करा था EP में है, I started with this and I got the answer. Has everybody understood this? So there are different ways of solving. Whatever is convenient for you, you guys will proceed with that part. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, फाइंड द सम of the 20th row. Find the sum of the 20th row. ठीक है, I have to find out the sum of the 20th row, sum of the terms of the 20th row. ठीक है, I have to find the sum of the terms of the 20th row. So, सबसे पहले, can anyone tell me what all data about the 20th row is available for us? What is the data that is available to us about the 20th row? तो बताएगा क्या रहेगा. Find the क्या पूछा है, sum of the 20th row. बोलो, what is the data that is available to us? In 20th row there will be 20 terms. बराबर. अब देखो, सब टर्म में ना एक का डिफरेंस है. ठीक है, सो 19th टर्म का भी देखो, फॉर एग्जांपल सेकेंड रो का लास्ट टर्म इज 3, तो थर्ड रो का फर्स्ट टर्म इज 4, थर्ड रो का लास्ट टर्म इज 6, तो फोर्थ रो का फर्स्ट टर्म इज 7, 19th रो का जो भी लास्ट टर्म रहेगा उसको अगर मैंने 1 ऐड किया, वो 20th रो का फर्स्ट टर्म रहेगा. सेकेंड थिंग देखो, यू गाइस सेड कि 20th रो में देयर विल बी 20 टर्म्स. परफेक्ट. फोर्थ रो में सॉरी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है मेरे पास. 20th रो में भी रहेगा, मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है. अगर मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दिया और मैंने उसको 19 ऐड कर दिया तो मुझे लास्ट टर्म मिल जाएगा. एग्जांपल देता हूँ, मैंने सेकेंड टर्म ले लिया, उसको 1 ऐड कर दिया, सेकेंड रो ले लिया, 1 ऐड कर दिया तो लास्ट टर्म मिल गया. थर्ड रो ले लिया, उसको मैंने, दिस इज थर्ड रो, उसको मैंने 2 ऐड कर दिया तो लास्ट टर्म मिल गया. फोर्थ रो लिया, उसको 3 ऐड कर दिया तो लास्ट टर्म मिल गया. 20th रो लिया, फर्स्ट टर्म को 19 ऐड किया तो लास्ट टर्म मिल गया. दैट इज आई कैन फाइंड 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द 20th रो, और how do I find the last term of the 19th row? Because pattern दिए है, ये up till 20 है, यहाँ पे up till 20 है. ठीक है, तो find the sum of the last term of the 19th row. बोलो क्या कर सकते हो, बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे कर सकते हो, बताओ. If there is anything I have to solve, how do I solve this? इसको ऐसे करो, उन्होंने शायद एक मिनट राइट द क्वेश्चन लाइक दिस. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. 1
1 2 1 2 3 1 2 3 4 up till 20 टर्म. सॉरी 1 2 3 4 नहीं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. बताओ कैसे करेंगे. हाउ डू आई फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द 19th रो एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द 20th. अभी इजी हो गया क्वेश्चन. बताओ क्या करूँ. T19 निकलेंगे. S19 क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को. T19 निकालो, S19 निकालो, बोलो. सम पूछा है, H20 डायरेक्ट निकाल सकते हैं. क्या रहेगा बताओ. 20/2 into 1 plus 20. S20 करना है, चलो करते पहले. आई बी चेंजिंग द क्वेश्चन, डोंट वरी. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं. S20 20/2 क्या रहेगा. 1 plus 20. ओके क्या रहेगा ये 10 into 20. ये कितना हो जाएगा 210. जब ये सीक्वेंस था, ठीक है, ये सीक्वेंस था. नाउ लेट्स गो ऑन टू द प्रीवियस सीक्वेंस. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द प्रीवियस सीक्वेंस. क्वेश्चन क्या था. 2 3 4 5 6 7 9 10 up till 20 terms. Tell me, how do I find the last term of the 19th row if I have to find the last term of the 19th row. Also एक formula दे दूंगा मैं. Whenever you have to find the sum of n terms, consecutive terms, the formula is n into n plus 1 by 2. Sum of n terms, sum of the first n terms. If I have to find out, the formula is n into n plus 1 by 2. The formula is n into n plus 1 by 2. Last part of the chapter में करना है हम लोग. So if I solve n terms का, consecutive terms का, तो the formula becomes n into n plus 1 by 2. ये हर sequence में ना the terms are consecutive. Can you tell me 19th row में how many terms will be there? 19 terms. So if I have to find the sum of the consecutive 19 terms, how will I find the sum of the consecutive 19 terms? क्या रहेगा formula? n into n कितना है into 19 plus 1 by 2. क्या हो जाएगा 190. Simple. 19 n by 2 first term plus last term. What is the first term? 1. What is the last term? 19. ये है मेरा terms का formula n into n plus 1 by 2. So can you tell me what is the last term of the 19th row? What is the last term? 190. तो नेक्स्ट टर्म का S20 का फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 191. ये रहेगा 20th रो का फर्स्ट टर्म. ये है फर्स्ट टर्म. तो 20th रो का लास्ट टर्म क्या रहेगा 210. क्या किया मैंने 191 को 19 ऐड किया तो क्या हो जाएगा ये 210. And can you tell me what is S20 then? S20 will become 20 by 2 191 plus 210. And since you solve 191 plus 210, this is the answer that you get. So ये याद रखिए ना, लास्ट लेक्चर में आने वाला है. सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब टर्म्स, ये सब फॉर्मूला आएगा इन द लास्ट लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर सीक्वेंस सीरीज. तो एज ऑफ नाउ वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. यही n स्क्वायर आएगा और यही n क्यूब आएगा. वेरी नाइस सम, वेरी बेसिक सम. सो दिस इज हाउ यू गो. द फर्स्ट, सबसे पहला चीज़ अभी हमने सीखा है, लास्ट पार्ट में आएगा. बट the sum of the first n terms is going to be n into n plus 1 by 2. The formula is what? N into n plus 1 by 2. Okay. Now, if a1, a2, a3, an is a sequence of non-zero numbers which are in AP. ठीक है.
prove that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 2 plus dot 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 plus 1 upon an a1 is equal to twice of upon a1 plus an 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus dot 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 1 upon an. ये प्रूफ करना. टू प्रूफ मतलब आई हैव गिवन यू टू प्रूफ rather than giving options. I have given you two proof. अब ना what we can do is to make it easier for us. ये actually पूरा question दिया है. Sometimes the question comes is कि ये जो part दिख रहा है ना right hand side में ये numerator में लेते हैं. We take this part ना we take it in the numerator. So कैसे दिखेगा question? I'll be solving it. So I'll show you कि how it becomes easier for you. I have to prove this. क्या दिया है? और ना sequence देखो. Try to understand the sequence. ध्यान से देखो sequence. आगे से पहला टर्म, पीछे से पहला टर्म, आगे से दूसरा टर्म, पीछे से दूसरा टर्म, आगे से थर्ड टर्म, पीछे से थर्ड टर्म, आगे से लास्ट टर्म, पीछे से लास्ट टर्म. The sequence is perfect. A1 an, A2 an minus 1, A3 n minus 2, blah 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 plus 1 upon an and A1 is equal to twice of A1 plus an. This is what we had to prove. So मैं क्या करूँगा? सबसे पहले I am going to take this term A1 an in the right hand side और I'll be easy. टू प्रूफ करने से पहले ना मैं क्या करूँगा पता है? दोनों साइड को मल्टीप्लाई both sides by a1 plus an. गाइज जैसे ही मैंने दोनों साइड को a1 प्लस an से मल्टीप्लाई किया, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a1 प्लस an, मैंने डाल दिया ब्रैकेट, बाकी सब रहेगा a1 an प्लस 1 अपॉन a2 an माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a3 an माइनस 2 प्लस डॉट 1 अपॉन an a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन an. चलो अब मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा इजी हो गया, मेरा डिनोमिनेटर हट गया. नाउ लेट्स फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ आई फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में ना मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला. आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एवरी टर्म विथ a1 प्लस n. प्लीज ध्यान देंगे, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिस टर्म को सबसे मल्टीप्लाई किया, सो द ओनली चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इज दिस a1 प्लस an, a1 an, a1 प्लस an, a2 an minus 1, a1 plus an, a3 n minus 2, a1 plus an a1. फर्स्ट टर्म इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर मैंने इसको सेपरेट किया, सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इसको अगर सेपरेट किया तो ऐसा हो जाएगा a1 a1 an a1 an. कट हो गया. सेकेंड टर्म कट नहीं होगा, थर्ड कट नहीं होगा, फोर्थ कट नहीं होगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन वी डू? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कट हो जाएगा. सो आई कैन गेट 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an. सो ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन an हो गया. 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a1 विल बिकम ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन a1. बीच के टर्म्स का क्या? बोलो, एनीबॉडी बोल. वेरी गुड.
this is what it is. So this is, since they are equidistant, so I will write a1 plus an is nothing but a2 plus an minus 1 is equal to a3 plus an minus 2. चलता रहेगा. क्यों? आगे से पहला टर्म प्लस पीछे से पहला टर्म इज इक्वल टू आगे से दूसरा टर्म प्लस पीछे, इसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट. Terms are equidistant, their arithmetic progression is going to be same. So a1 plus an is equal to a2 plus an minus 1 is equal to a3 plus an minus 2. So remember this. So what I am going to write it, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे a1 plus an upon a1 an plus a2 plus an minus 1 upon a2 n minus 1 plus a3 plus n minus 2 upon a3 an minus 2 प्लस लास्ट का टर्म ऐसे लिखेंगे an plus a1 upon an a1. अब सबको आराम से सेपरेट करते हैं. सो a1 upon a1 an plus a2 upon a1 an plus a2 upon a2n minus 1 plus an minus 1 upon a2an minus 1 plus a3 upon a3an minus 2 plus an minus 2 upon a3n minus 2 और चलते रहेगा. तो अब देखते क्या कट होता है. a1 निकला, a1 निकला, an है, सॉरी इज an गाइस, an निकला, an निकला, a2 निकला, a2 निकला, an माइनस 1 निकला, a3 निकला, a3 निकला, n माइनस 2 निकला, n माइनस 2. अब एक और टर्म लिखेंगे लास्ट में प्लस an अपॉन an a1 प्लस a1 अपॉन an a1. ये निकला an, ये निकला an, ये निकला a1, ये निकला a1. आई एम लेफ्ट विथ 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन an माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a2 और लास्ट में जाएगा 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन an. एंड इफ आई सॉल्व दिस, एवरी टर्म विल बी रिपीटेड ट्वाइस. तो a अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन an. सो दिस इज द होल प्रूफ, द एग्जैक्ट प्रूफ. हमने कुछ नहीं किया है. आई हैव जस्ट टेकन द डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कैसे? आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बोथ साइड. क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज एक पैटर्न बनेगा. सी आई हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर हैज टू बी अ पैटर्न. आई कैन नॉट जस्ट रैंडमली स्टार्ट. यहाँ पे मैं जनरेट नहीं कर सकता. सो फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज a1 प्लस an. कैसे करेंगे? या तो डिनोमिनेटर से डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, या तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a1 प्लस an. सो वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू गाइज विल प्रोसीड विद दैट मेथड. तो उन लोगों को जो कन्वीनियंट लगेगा, you will proceed with that method. Okay, next, before we start with arithmetic mean, the last question before we start with arithmetic mean, if x y z are real numbers, satisfying the equation 25 into 9x square plus y square plus 9z square is equal to 15, 5xy plus yz plus 2xz 3xz. Okay, then x y z are in AP, GP, HP. ठीक है. सो अब मुझे चेक करना है कि ये पैटर्न दिए, ये पैटर्न से AP में है, GP में है, HP में है. हाउ डू वी प्रोसीड विद सम? बिकॉज एक्स स्क्वायर भी दिया है, वाई स्क्वायर भी दिया है, जी स्क्वायर भी दिया, एक्स वाई भी दिया है, वाई भी दिया है, एक्स भी दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया हुआ दिया है. सो दिस
इज द इक्वेशन, बिकॉज दिस इज द ओनली इक्वेशन दैट इज गिवन, और कुछ डेटा दिया ही नहीं, ऑब्वियसली दिया है कि एक्स वाई जी आर इन एपी दिया आर रियल नंबर, सॉरी दे आर नॉट, वी हैव टू फाइंड आउट कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। अब मुझे 25 भी दिया, लुक एट द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 इंटू 9 225, लकीली वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 225 इज अ 15 का स्क्वायर, 25 is 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9। सो व्हाट गेट्स मी थिंकिंग इज, इसको एक्सपांड करते हैं, ये हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 जी स्क्वायर दिया। बट मुझे पता है कि 225 इज 15 का स्क्वायर, 15, बट राइट हैंड साइड में 15 के साथ 5 भी है, 15 के साथ y है, बट यहाँ पे 15 के साथ x नहीं, सिर्फ x है। सो आई हैव टू बी वेरी टैक्टिकल कि x का दोस्त है 15, x इज डूइंग फ्रेंडशिप विथ 15, y इज डूइंग फ्रेंडशिप विथ 5 एंड z हैज फ्रेंडशिप विथ 9। याद रखो, तो x स्क्वायर का दोस्त 225 है तो x का दोस्त 15 रहेगा, y स्क्वायर का दोस्त 25 है तो y का दोस्त 5 होगा, z स्क्वायर का दोस्त 9 है तो z का दोस्त 3 होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, लुक एट दिस। ठीक है, y का दोस्त देखो क्या है, y का दोस्त 5 है, z का दोस्त 3 है, y का दोस्त 5 है, z का दोस्त 3 है, और मिला के बनता है 15yz। x का दोस्त 15 है, y का दोस्त, z का दोस्त 3 है, ठीक है, सब अपने अपने दोस्तों के साथ चले गए। प्रॉब्लम क्या आने का, फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, इट इज स्टिल नॉट मेकिंग अ फॉर्मूला, बिकॉज अगर तुम लोग को याद रहेगा, देर इज सर्टन एंगल दैट इज मिसिंग इफ आई हैव टू फॉर्म, क्योंकि अच्छा ये भी लिख लेता है, चलो बिफोर आई फॉरगेट, आई कैन राइट दिस एज 15x the whole square, 5y the whole square, 3z the whole square, 15x into 5y, 5y into 3z, 15x into 3z। मैंने ग्रुपिज्म कर दिया। कैन एनीवन टेल मी what is missing here for the formula to be complete? Something is missing here for the formula to be complete. What is missing? Because ये perfect square बन सकते हैं। I have the formula. We know the formula. You know the formula that if I write the formula a plus b plus c the whole square, a plus b plus c the whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. The same will become a minus b minus c the whole square will become, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, मेरे पास माइनस भी है, क्या मिसिंग है यहाँ पे, मिसिंग है 2। अगर मिसिंग 2 है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, this will become 2 into 15x the whole square, 2 into 5y the whole square, 2 into 3z the whole square, minus 2 times 15x into 5y, 2 times 5y into 3z, 2 times 15x into 3z equal to 0। इससे क्या फायदा हुआ, टेल मी, इसके बाद क्या करेंगे, बन रहा है क्या फॉर्मूला, नहीं बन रहा है, चलो बनाते हैं। 15x minus
twice into 15x into 5y plus 15x the whole square plus 5y the whole square. Did you guys understand this? मैंने दो 15x द होल स्क्वायर के दो टर्म्स है, मैंने एक टर्म निकाला यहाँ पे डाला, दूसरा टर्म निकाला z का जो एक टर्म निकाला और यहाँ पे निकाला और मेरा a माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया प्लस नेक्स्ट टर्म 5y the whole square minus twice of 5y into 3z plus 3z the whole square. ये मेरा सेकंड टर्म हो गया. तो आई हैव द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगेन देखो मेरे पास दो 5y टर्म था, एक यहाँ पे चिपका दिया एक यहाँ पे चिपका दिया, मेरा दोनों 5y 5 ट्वाइस ऑफ 5 इंटू वाई द होल स्क्वायर एग्जॉस्ट हो गया है बिकॉज एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे चला गया. ठीक है, दोनों टर्म्स एग्जॉस्ट हो गए. आई हैव गॉट बोथ द टर्म्स, आई हैव यूटिलाइज बोथ द टर्म्स. अब लास्ट में बचा है मेरे पास एक 15x बचा और एक 3z बचा है. सो आई विल राइट इट एज 3z द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 3z इंटू 15y प्लस 15x प्लस 15x the whole square equal to 0. Now, can you guys tell me? So, थोड़ा सा can you guys tell me? This will become 15x minus 5y the whole square plus 5y minus 3z the whole square plus 3z minus 15x the whole square equal to 0. Can anyone tell me when is this possible? When will the square of the terms be equal to 0? When individually they are equal to 0. When individually they are equal to 0. मतलब I will write 15x minus 5y equal to 0. 5y minus 3z is equal to 0. 3z minus 15x equal to 0. Therefore, 15x is equal to 5y. 5y is equal to 3z. 3z is equal to 15x. So x is equal to 3 y by 3. Y is equal to 3z by 5. Z is equal to 5x. Did you guys understand this? इससे क्या मिलेगा? How will come to know कि ये AP में है, GP में है? How do I come to know कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? बोलो. ये 3 मिल गया, x इज इक्वल टू वाई बाई 3 मिल गया, y इज इक्वल टू मिल गया एंड z इज इक्वल टू दिस हो गया. अच्छा चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये सब इक्वल है. अगर इक्वल भी ले लिया तो x इज इक्वल टू वाई बाई 3, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है. व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? बताओ. हाउ डू आई राइट दिस? इफ आई हैव टू राइट दिस, हाउ एम आई गोइंग टू राइट दिस? z x का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा. अगर चाहिए तो आई कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू z बाई 5. चलो x इज इक्वल टू z बाई 5 लिख दिया मैंने कि x इज इक्वल टू z बाई 5 भी होगा. इसके बाद क्या कर सकते हैं? वेरी क्लोज. कैन एनीवन टेल मी हाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? कि 15x हो गया इक्वल टू 5y. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चलो तुम लोग कंफ्यूज नहीं करते, ये निकाल दो. ये दिख रहा है? व्हाट कैन आई राइट? 15x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 3z. चलो इसके बाद क्या करेंगे बताओ? What can I do after this? Because A equal to B, B equal to C, therefore A equal to C. What will you do after this? Anything? Divide all by 15. If I divide by 15, so x is equal to
y by 3 is equal to z by 5 equal to k. y by 3, हाँ ये y ना, y by 3, yes. Now क्या हो जाएगा फिर, x is equal to k, y is equal to 3k, z is equal to 5k. What can you say about k, 3k and 5k? Common difference Common difference to is 2, and if सबका common difference same है, so what can I say about x, y and z? The sequence is in arithmetic progression. Has everybody understood this? सब लोगों को समझा? ठीक है. So this marks your end of S. So sum of n terms, the nth term, AP का 3 terms रहेगा तो क्या करना है, 4 terms रहेगा तो क्या करना है, common difference Sn minus Tn is nothing but Sn minus Sn minus 1. लीनियर रहेगा तो AP रहेगा, for Sn हमेशा quadratic होना चाहिए, Tn हमेशा लीनियर होगा. Has everybody understood this? रेशियो का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ n इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, चलो. Now, let's start with the introduction to arithmetic mean. नाम में ही पता चल रहा है यहाँ पे आ गया है मीन. In layman or common person's term, we can call mean as the average. For example, अगर मेरे पास 3 टर्म दिया है, ठीक है, समझो if 3 terms are in AP, समझो ये दिया है 3 terms AP में थे, A, B and C are in AP. This is the mean between the terms. For example, I'll give an example. समझो मैंने 3 terms लिया है 1, 2, 3. Let's add the first and last term और उसका एवरेज निकालेंगे. My answer is going to be 2, which is this term. So I can say that 2 is the mean or 2 is the average between the terms which are in AP. 1, 2, 3 अगर मैंने terms लिया है तो I realize that 3 plus 1 will give 4 by 2 is 2, which is the arithmetic mean. So I can say that यहाँ पे I'm just saying that I can say that A plus C by 2 is equal to this, which we already know. I'll tell you how. ये देखो ध्यान से, B minus A is equal to C minus B. अपने को पता है, which is 2B is equal to A plus C. तो B is equal to A plus C by 2. AP में हम लोग वही कर रहे थे. AP में हमने जो किया है वही अरिथमेटिक मीन में होगा. तो the whole concept is based on arithmetic mean. And my mean का formula is A plus C by 2. But ये जो 3 terms है ये easy है. अब 4 terms दिया, 5 terms दिया, 6 terms दिया, 7 terms दिया, 36 terms दिया, n terms दिया. So how are we cannot just solve every time, we cannot keep finding the mean for that. So what we are going to do is, if I have to explain this, okay, सबसे पहले चीज we have to understand कि whenever you find the mean, arithmetic mean, certain things will also always be given. For example, imagine मेरे को first term दिया है, first term is given 1, last term is given 100. First term is given 1, last term is given 100, and उसके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन है, 10 अरिथमेटिक मीन है, 20, कितना भी अरिथमेटिक मीन हो सकता है. सो इफ आई हैव टू हेल्प यू, समझो फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू 1, लास्ट टर्म इज गिवन टू यू एज 100. समझो उसके बीच में दे हैव गिवन A1, A2, A3, A4. There are 4 arithmetic means in between. सबसे पहले मेरे दिमाग में ये रजिस्टर होना चाहिए कि मेरे पास 6 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और बीच के 4 टर्म्स. बिकॉज व्हेन दे से दैट देयर आर 4 arithmetic means, those arithmetic means are terms. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है,
मेरे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकेंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक मीन and your last term. So since you have 6 terms which are in AP में रहेगा तो ये अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, which are in AP. तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब a plus 5d is 100, 5d is equal to 99, तो डिफरेंस हो जाएगा 99/5. परफेक्ट. और गाइस अगर तुम लोग के पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, यू कैन फाइंड a1. a1 will become a plus d, a2 will become a plus 2d, a3 will become a plus 3d, and a4 will become a plus 4d. So the biggest difference between arithmetic progression and arithmetic mean में जो नंबर यहाँ पे है वही d का कोएफिशिएंट होगा, बट AP में वैसे नहीं होता. AP में इट्स a2 will become a plus 2 minus 1d, हमेशा कम होता है. क्यों होता है पता है? बिकॉज यहाँ पे एक पहले से टर्म दिया है, अरिथमेटिक मीन इज बिटवीन द टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म विल नेवर बी एन अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट टर्म विल बी गिवन टू यू. सो इससे हमें क्या पता चलता है, इफ आई हैव टू सम दिस अप, सबसे पहले कि इफ देयर इज वन अरिथमेटिक मीन, इफ देयर इज वन अरिथमेटिक मीन, ओके समझो ABC दिया है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं. If A, B, C is given, one arithmetic mean will become B is equal to A plus C by 2. This is your one arithmetic mean. अगर मुझे n arithmetic mean निकालना है, n arithmetic means between A, A1, A2, A3 dot AN and B ले लेते हैं या C ले लेते हैं, B ले लेते हैं, चलो ठीक है. n arithmetic means between A and B. अब सुनो, सबसे पहले if there are n arithmetic means my number of terms are going to be, my number of terms, I repeat again, my number of terms are going to be n plus 2 terms. क्यों n plus 2 terms? मैंने तुमको बोला था अगर बीच में n arithmetic means है और आगे एक टर्म और पीछे एक टर्म है, it means there are going to be n plus 2 terms. n being the number of arithmetic means आगे का पहला टर्म है पीछे का पहला टर्म. Has everybody understood this? So if this is given to you, number of terms are given to you, number of terms are given to you. So देखो मैं क्या लिखना हूँ. So my last term is given, देखो Tn is given as B, my first term is given as A, my first term is given as A, my last term is given as B. अगर मैंने फॉर्मूला लिया Tn is equal to A plus n minus 1d, Tn is B, A is A. Guys, number of terms is nothing but n plus 2 minus 1d. Therefore, B is equal to A plus n plus 1d. Therefore, d का value for arithmetic mean is B minus A upon n plus 1. This is how you find the difference in arithmetic mean. Last term minus first term upon n plus 1, where n we know that ये n plus 2 इसलिए है because ये जो है these are the number of terms, ये number of terms है, ये मेरा first term है, ये मेरा last term है, तो 1 plus 1 becomes 2, 2 plus n becomes n plus 2. Has everybody understood this? This is what you find. तो d will become b minus a upon n plus 1. अब अगर किसी ने पूछा कि what is the first arithmetic mean? It is a plus d, which is a plus b minus a upon n plus 1. समझो ठीक है, b minus a upon n plus 1 दिया है. अब किसी ने पूछा कि what is the third arithmetic mean? ठीक है, a3 which will become a plus 3d, which is a into b minus a upon n plus 1. So this sums up your arithmetic mean. कुछ नहीं किया arithmetic mean में. हमने एक्चुअली इफ यू सी ना, एपी का फॉर्मूला टू डिराइव am का फॉर्मूला, विच इज नॉट, दिस इज बेसिकली एपी सम, जहां पे उन्होंने बोला है कि देयर आर दीस टर्म्स, लास्ट टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अब मैंने फाइंड द डिफरेंस. अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू दे दिया, आई हैव द फर्स्ट टर्म, आई हैव द लास्ट टर्म, आई हैव n का वैल्यू डालो, मिल गया d का वैल्यू. फर्स्ट टर्म है समझो d10 हो गया,
फर्स्ट टर्म है 1, 1 + 10 11 +10 +10 +10, ऑब्वियसली एपी में रहेगा, 100% एपी में रहेगा। एपी एएम हमेशा एपी में रहेगा, एपी से एएम आया है, एएम से कभी एपी नहीं रहेगा। सो अरिथमेटिक मीन is a pure concept of arithmetic progression. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? So arithmetic progression बहुत important है, okay? And सबसे important remark if I have to tell you, ठीक है, सबसे important remark याद रखना हमको कि sum of n arithmetic means is equal to n times into arithmetic mean. याद रखना, ठीक है। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी समझो, मेरे को ऐसा दिया है कि a1 इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, a2 इज द सेकंड अरिथमेटिक मीन, a3 इज द थर्ड अरिथमेटिक मीन, an इज द nth अरिथमेटिक मीन। अब अगर ध्यान से देखेंगे तुम लोग, a1 का फॉर्मूला पता है मुझे, दिस इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a plus nd, ओके। अब कितने a's हैं? there are n a terms and there are n d terms, there are n a terms, there are n d terms. So I will write a plus a up till n terms plus, guys अगर d ले लिया तो 1 + 2 + 3 up till n terms, ठीक है, up till n terms. Any term that goes up till n terms becomes n times that term, that is na, plus, guys हम लोग ने अभी किया था, sum of the first n terms is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2, so this becomes n into n plus 1 by 2. अरे बात d का वैल्यू तो है अपने पास, d का वैल्यू इज b minus a upon n plus 1, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, this will become na plus b minus a upon n plus 1 into n plus 1 by 2. देखो ध्यान से देखो, ये निकल गया, ये निकल गया। अब if I write it on the next page, this will become na plus b minus a upon 2, b minus a upon 2 into n, ये देखो यहाँ पे n बच गया, n निकलेगा, ठीक है। If I simplify this, 2an plus bn minus an upon 2, which is nothing but 2an minus an, becomes an plus bn by 2, n कॉमन ले लिया, a plus b by 2, अरे गाइस ये तो अरिथमेटिक मीन है, therefore n times an, and this is what you have to do. Again, at any stage we have not used anything other than AP. देखो a plus d, a plus 2d, a plus 3d, सब a टर्म साथ में ले लिया, n टर्म्स तक na हो गया, फिर d ले लिया, d का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, b minus a upon n plus 1, n plus 1 n plus 1 निकल गया, and if I go on the next page, this is the formula. So basically sum of n arithmetic means is n times arithmetic mean. अगर sum of 6 arithmetic means is 6 times arithmetic mean. Sum of 10 arithmetic means is 10 times arithmetic mean. तो ये हमको याद रखना है। n अरिथमेटिक, n के जगह कोई भी नंबर डाल दो, तुम लोग को एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बेसिकली अगर 6 अरिथमेटिक में बोलते हैं 6 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, n इज द अरिथमेटिक मीन, याद रखो, n इज द अरिथमेटिक मीन, n is not the number of terms, n is the arithmetic mean. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? तो ये होता है arithmetic mean का। We'll finish this, we'll just take a sum and we will stop the lecture. The last sum for the day for arithmetic mean, okay? If there are 11 arithmetic means between 28 and 10, find fourth arithmetic mean.
if there are 11 arithmetic means between this and this, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बोला है फोर्थ arithmetic mean, the formula is a plus 4d. I know d का value is b minus a upon n plus 1. They have said 11 arithmetic means. मेरा a देखो क्या है, 28 plus 4 into 28 minus b minus a. 10 minus 28, 11 arithmetic means 11 plus 1. How many of you have not understood this? ठीक है, find the fourth arithmetic पूछा. अभी अगर ये solve कर दिया, 28 plus 4 times minus 18 upon 12. 4 times 1, 4 times 3, 3 times 1, 3 times 6. 28 minus 6 is 22. That's it. We have d ka formula, we have number of arithmetic means, we have the first term, we have the last term. This is how we will proceed with arithmetic mean in the next session. Has everybody understood this? So today's session, when we finish the entire arithmetic progression, sum of n terms, how are we supposed to solve when there are certain sums, when you need a term independent of x. Formula बनता है a plus b plus c the whole square. Square of the term 0 बन सकता है. कब 0 बनेगा? when individually the all terms are 0, so you can equate it to 0. वो AP बन सकता है, GP बन सकता है, HP बन सकता है, depending on the data that is given. And then the end of the lecture, we started with a new concept, that is arithmetic mean, which is only and only dependent on arithmetic progression. Has everybody understood this? Chalo, we'll stop with the lecture.